بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھنے سارے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، زندگی اور موت کا مالک ایک اللہ ہے۔ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی، وہی اللہ ایک دن مجھے اور آپ کو موت بھی دے گا۔ ہم سے پہلے بھی لوگ دنیا کو آباد کر کے چلے گئے، ہم نے بھی ایک دن دنیا کو چھوڑ کر قبر میں اتر جانا ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی رہ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ 10 محرم سن 61 ہجری امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کھڑے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو خطاب فرما رہے ہیں، کیا ہو گیا اگر کوفی ہم پر چڑھ آئیں اور یہ ہمیں شہید کر دیں تو کیا انہیں موت نہیں آئے گی؟ مرنا تو انہوں نے بھی ہے، لیکن اللہ رسول کو راضی کر کے دنیا سے چلے جانا کتنی بہترین موت ہے۔ جس نے اللہ رسول کو راضی کیا، رب کی قسم، موت کے بعد کی زندگی عیش و عشرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ لیکن جس نے اللہ رسول کو اس جہان میں ناراض کر دیا، موت سے پہلے، آنکھ کے بند ہونے سے پہلے اللہ کو ناراض، اللہ کے حبیب کو ناراض کر گیا، میرے رب کی قسم، اس سے بڑا ذلیل اور ناکام کوئی نہیں۔ اس لیے دونوں جہان کے سردار نبی فرما رہے ہیں، الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا اور جس نے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کر لی۔ یہ آدمی بہترین ہے، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کیے۔ موت کے بعد کون سی زندگی ہے کوئی نہیں بتاتا، یہ دونوں جہان کے سردار نبی ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ ہماری تو ہر مجلس سیاست کی نظر ہو گئی، مسجد میں بھی سیاست کی باتیں، موت کے تھڈے پہ بیٹھ کر بھی سیاست کی باتیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن قبر آواز نہ دیتی ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میرے پاس آنا ہے تو تیاری کر کے آنا۔ لیکن نبی فرما رہے ہیں، کون ہے عقل مند؟ جس نے موت کے بعد آنے والے عمل زندگی کے لیے عمل کیے۔ کیا حالات پیش آتے ہیں، ہم تو دفن کر کے آ گئے، 2-4 دن رو دو کر بس پھر بھول بھلیاں ہو جاتی ہیں، بھول جاتے ہیں کوئی دنیا میں بھی آیا تھا۔ ایسے گھر بھی دیکھے جہاں رونے کی آوازیں کہیں دور تک سنائی دے رہی ہے، رو رہے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں کوئی شادی کا سما ہوا تو ڈول کی آوازیں، گانوں کی آوازیں دور تک سنائی دے رہی ہیں کہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن بھائیو، جو دنیا سے چلا گیا اس کے ساتھ کیا معاملے پیش آئے؟ ہم نے کبھی سوچا نہیں ایک دن میں نے بھی تو اسی قبر میں اترنا ہے۔ اکیلے، ماں کے پیٹ سے اکیلے آئے، قبر میں اکیلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابھی لوگ دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، آتاہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں، فیجلسانی، مالدار ہے یا غریب، مرد ہے یا عورت، کالا ہے یا گورا، حکومت کا بندہ ہے یا غیر حکومت کا، کوئی ہے، اسے بٹھاتے ہیں، فیجلسانی، بٹھاتے ہیں، یہ میرے آپ کے ساتھ کل کو معاملہ پیش آنے والا ہے، قبر میں میرے کوئی نہیں آئے گا، میں نے اکیلے قبر میں اترنا ہے، آپ نے اکیلے قبر میں اترنا ہے، وہاں مجھ سے آپ سے یہ سوال ہوں گے، کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلا سوال ہے، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟
किससे रब मान कर आया था, दुनिया में किसके सामने झुका था, किससे मददें मांगी थी? एक अल्लाह है जिसने अपना तारुफ कराया। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान शुरू हो रहा है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। मैं और आप पैदा हुए, पहला काम शरीयत ने बताया, अल्लाह रसूल ने बताया, कोई और नहीं। खाना पीना बाद में, पहला काम ये करो, बच्चे के कान में आजान कहो, दाएं कान में सबसे पहले उसके कान में ये कलिमात डालो, बाएं कान में इकामत कहो, सबसे पहले ये आवाज डालो, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, रब अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, बिगड़ियां बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, सबसे बड़ा जुल्म दुनिया में अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये सबसे बड़ा जुल्म है। लुकमान की वसीयत अल्लाह कुरान में अपने बेटे को वसीयत फरमाई थी, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, कि वो वहदहु ला शरीक है, वो अहद है जिसका दूसरा बन ही नहीं सकता। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह का जात में भी शरीक कोई नहीं, सिफात में भी शरीक कोई नहीं है। अल्लाह अकेला है, यकता है। भाइयों, ये कब्र में पहला सवाल होना है, किसी और के घर पे ना झुके। हम नमाज में पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उलमा तशरीफ फरमाए हैं, इय्याका का लफ्ज बाद में आना चाहिए ग्रामर के लिहाज से, नअबुदु इय्याका होना चाहिए, नस्तईन इय्याका होना चाहिए, लेकिन अल्लाह पहले लाकर बता रहे, इय्याका नअबुदु, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, कि इबादत के काबिल तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं है। व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं कि तेरे सिवा कोई मदद करने वाला कोई नहीं है। ये सबसे पहला काम है जो मेरे आपके जिम्मे है। रिज़्क़ का मामला अल्लाह के हाथ में, अल्लाह खिलाते हैं, अल्लाह भूखा नहीं सुलाते, नाफरमानों को भी अल्लाह देते रहे, फरमानबरदारों को भी। यअकुलु मिनहुल बर्रु वल फाजिर, हाँ दुनिया सरसब्ज है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये मीठी है, सरसब्ज है। यअकुलु मिनहुल बर्रु वल फाजिर, दुनिया से नाफरमान भी खा रहा है, फरमानबरदार भी खा रहा है। अल्लाह के जिम्मे है रिज़्क़ का पहुंचाना, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह खुद फरमा रहे, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे है। हमने रिज़्क़ कोई मसला बना दिया, महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और कहीं हमारी मजलिसों में अल्लाह के तज़किरे ही कोई नहीं। जिसको अल्लाह के हबीब ने पुकारा बदर के मैदान में, उहद में, खंदक में और यरमुक के मौके पर और खैबर में और हुनैन में, हर जगह अल्लाह के नबी ने मदद के लिए पुकारा है, तो एक अल्लाह को पुकारा है। अपनी मजलिसों में ये तज़किरे जिंदा करें, मेरी जरूरतें अल्लाह से हल होंगी, मेरा मुश्किल कुशा एक अल्लाह है, मेरा हाजत रवा अल्लाह है, मेरी बिगड़ियां बनाने वाला अल्लाह है, बेटे देने वाला है तो अल्लाह है, बेटियां देने वाला है अल्लाह है। 84 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा देकर दिखाया है, जब मैं देने पे आऊं सब नाउमीद हो जाते हैं, जब अल्लाह देने पे आते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। तो भाइयों, ये कब्र का पहला सवाल है, बता तेरा रब कौन है। ये रटने का जवाब नहीं कि मैं रट के चला जाऊं, रट्टा लगा लो, रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह। अमल बोलेगा, किससे पुकारा था, किसके सामने झुका था, किसके सामने सजदे किए थे। अल्लाह को तो ये शिर्क की बू भी पसंद नहीं। जनाजा सामने है, उस पर दुआ पढ़ो तो इस हाल में कि सजदा कोई नहीं, कहीं ये ना हो कि लोग ये कहें, ये दिल में ख्याल आ जाए कि ये सामने जो रखा हुआ है इसके सामने मैं झुक रहा हूं। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, वो फरमाते हैं जब दुनिया में मुसलमान पर कोई मुसीबत आए और वो अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा हाजत रवा समझे, आसमान पर उसका नाम मुसलमानों से काट दिया जाता है।
مسلمان وہ ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو بھائیوں اپنے مجلسوں میں رب کے تذکرے کریں۔ اللہ خود قرآن میں بار بار یہی فرما رہے ہیں، رب المشرق ورب المغرب، مشرق کا بھی رب اللہ، مغرب کا بھی رب اللہ، رب المشرقین ورب المغربین، شمال جنوب کا رب اللہ۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، ساری کائنات کا رب اللہ۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان میں بھی اس کی بادشاہت ہے، زمین میں بھی اس کی بادشاہت ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، میرے محبوب آپ فرما دیجئے بادشاہوں کا بادشاہ ایک اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے گا بادشاہت دے گا، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے گا بادشاہت چھینے گا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے عزت دے دے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں بدلتا ہے، دن رات کو دن میں بدلتا ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ وَتَرْضُقَ مَنْ تَشَاءُ، بے شمار رزق دیتا ہے جس کو چاہے رزق دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ایک اللہ ہے ہر جگہ حاضر ناظر، ایک اللہ ہے ہر جگہ پر قدرت رکھنے والی ذات۔ اس رب کو پکاریں بھائیوں، مجلسوں میں تذکرے اللہ کے واسطے اسی رب کے کریں، واللہ خود ہمیں پکارتا ہے۔ اے میرے بندو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آؤ دوڑ لگانی ہے تو کہاں کی دوڑ لگاؤ؟ اللہ کی دوڑ لگاؤ۔ اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ ناراض ہو گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ اور رب کو راضی کرنا آسان، دنیا میں اتنا کسی کو راضی کرنا آسان نہیں جتنا رب کو راضی کرنا آسان ہے۔ اس رب کو جو کائنات کا مالک ہے، جو جتنے بڑے درجے کا آدمی ہوتا ہے دینی لحاظ سے یا دنیا کے لحاظ سے، وہ اتنے ہی اس کی منتیں کرنی پڑتی ہیں راضی ہونے کے لیے، لیکن قربان جائیں جو کائنات کا رب ہے اس نے راضی ہونے کے لیے راستہ بتا دیا۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے محبوب کی اتباع کر کے آ جاؤ میں اللہ راضی ہو جاؤں، میرے محبوب کی مان لو میں راضی ہو جاؤں گا۔ یہ قبر کا دوسرا سوال ہے، من نبی؟ آج دنیا میں لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب سنتی تے ہے، کرو ثواب نہ کرو تے گناہ گہنی۔ ابھی ہمارے قاری ظہیر صاحب فرما رہے تھے اعمال جو محبوب زندگی لے کر آئے ہیں، کہ اللہ کی قسم اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل اللہ کو ساتوں آسمان ساتوں زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کو محبوب سے محبت، یہ قبر میں سوال ہوگا۔ آج تو مولوی صاحب کو جواب دے دو مولوی صاحب سنتی تے ہے، کرو ثواب نہ کرو تے گناہ گہنی، لیکن قبر میں پوچھا جائے گا من نبی، بتا تیرا نبی کون ہے، کس کی مان کر آیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کی تصویر مبارک سامنے لائی جائے گی اور کہا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کون ہے یہ؟ اس نبی کی زندگی چھوڑ کر آج ہماری پریشانی کا ایک ہی حل ہے، وہ ڈالر کے اوپر جانا نہیں ہے، وہ حکمران نہیں ہے، اس کے ذمہ دار فوج نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم عوام ہیں کہ ہم نے نبی کی زندگی چھوڑ دی ہے، جس نبی کی زندگی پر اللہ نے دونوں جہانوں کے بننے کا وعدہ فرمایا تھا۔ دنیا میں راحت دوں گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں جو نیک عمل کرے گا۔ نیک عمل کون سا ہے؟ وہ محبوب کا طریقہ ہے، جو میرے محبوب نے کیا وہی کر کے آئے گا۔ اللہ کا اعلان ہے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں دنیا کی زندگی بہترین بنا دوں گا۔ دنیا کی زندگی حکمرانوں سے نہیں بدلنے حالات، یہ ہماری طرح ہی انسان ہیں، جو دونوں جہان کے سردار عمل لے کر آئے تھے۔ میرے رب کی قسم وہ بکریاں چرانے والوں نے وہی اعمال اپنائے تھے۔ اللہ نے کسرا اور کیسر کو ان کے قدموں میں، ان کے خزانوں کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیوند لگے ہوئے، وہ 22 پیوند لگے ہوئے کپڑے میں، اور وہ کسرا کو فتح کرنے جا رہے ہیں، ملک شام فتح ہو رہا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کوئی سائنس ایٹم ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں، وہ نبی کے غلام بن کر گئے تھے، اللہ نے کائنات کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اسی نبی کی زندگی سے دنیا بھی بنے گی۔
डॉलर चाहे इतना गिर जाए कि $100 1 के $100 मिले, अगर महबूब की जिंदगी नहीं है, रब की कसम सुकून नहीं मिल सकता। हम तो मुसलमान हैं, हम क्यों गैरों के तरीके अपनाएं? हम वो करेंगे जो मेरे नबी बता कर गए हैं। ये कब्र में पूछा जाएगा, हाँ ये कौन है, क्या जवाब देंगे? कोई मौलवी साहब नहीं आएंगे कब्र में। ये मजमा जवाब नहीं दे सकता भाई बिलाल के वालिद साहब की तरफ से, गुलाम हुसैन मरहूम की तरफ से, क्या हाँ इनका ये अल्लाह के नबी हैं, जवाब दो। नहीं, वो तो खुद जवाब देंगे। कल को जब मुझे कब्र में उतारा जाएगा, मुझे खुद जवाब देना पड़ेगा। अगर मैं उसी नबी की मान कर गया था तो जवाब देगा, मैं दूंगा जवाब। ये तो मेरे हबीब हैं, ये तो अल्लाह के रसूल हैं, ये तो मेरे नबी हैं। और अगर नहीं गुजारे उस महबूब की जिंदगी तो अल्लाह के नबी का जवाब सुनो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि वो कहेगा, ला अदरी, मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं नहीं जानता कौन है। और भाइयों, मैं आपको कुरान हदीस से, ये आखिरत के आमाल हैं, हम क्यों किसी और चीज में पड़े? कोई इधर भाग रहे, कोई उधर भाग रहे, सियासी पार्टियां, कोई दीनी जमात फला। वाज़े दीन है, आसान दीन है। अल्लाह को रब मानो, महबूब को नबी मानो, रहबर मानो, उसी की जिंदगी अपनाओ। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह कोई दिखा नहीं सकता, दिल के अकीदे का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह है। मुहम्मद रसूलुल्लाह कोई छुपा नहीं सकता, नहीं छुप सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर से लेकर पांव तक की जिंदगी बताएगी, ये नबी का गुलाम है, ये नबी का गुलाम है। ये सियासी पार्टियां जितने भी हैं, कोई जिस पार्टी का है वो परचम लगाते हैं इलेक्शन के दिनों में, घरों पे परचम लगाए हुए, कपड़े वैसे पहनते हैं। 14 अगस्त आया, नौजवानों ने मुंह पे परचम बनाए, सब कुर्ता पहना और सफेद शलवार के जी पाकिस्तानी परचम से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत मेरे नबी ने भी की है, करो वतन से मोहब्बत। और मैंने इससे पूछा, मैंने कहा ये क्यों किया? कहने लगे मोहब्बत। मैंने कहा मोहब्बत तो दिल में होती है। कहने लगे इजहार तो करना पड़ता है, ये इजहार है कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। तो मैंने कहा पाकिस्तान से पहले तो उस नबी का कलमा पड़ा था जिसको कायनात का अल्लाह ने सरदार बनाया था। क्या उस नबी के को से मोहब्बत को जाहिर नहीं किया जाएगा? हम किसी से बात करें, जी भाई ये दाढ़ी हमारे नबी की सुन्नत है, वो कहने लगे मौलवी साहब सारा दिन दाढ़ी में है क्या? नहीं, ये तो मेरे नबी का शिआर है, ये मेरे नबी की वो सुन्नत है जो अल्लाह को सारी दुनिया के खजानों से ज्यादा महबूब है। एक एक अदा अल्लाह के नबी की अल्लाह के यहाँ पसंद है। महबूब जैसे अल्लाह के नबी महबूब हैं, वैसी अल्लाह के नबी की अदाएं अल्लाह को पसंद हैं। और जो अल्लाह के नबी की अदाएं अपनाता है वो भी अल्लाह को पसंद है। तो भाइयों, इससे पहले कि मौत आए उस महबूब की अदाओं को अपनाएं। रब की कसम, मेरे नबी ने कसम खाकर फरमाया था, या अबा सुफियान वल्लाहि कद जिअतुकुम बिखैरिद दुनिया व करामतिल आखिरह। अबू सुफियान, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी फरमा रहे, जब अबू सुफियान मुसलमान हुए तो मेरे नबी ने उनसे फरमाया था, या अबा सुफियान, अबू सुफियान, अल्लाह की कसम। अल्लाह के नबी की बात वैसे ही पक्की है, लेकिन कसम खाकर और ज्यादा ताकीद कर दे कि अल्लाह के नबी फरमा रहे, अबू सुफियान, अल्लाह की कसम, मैं दुनिया की खैरें भी लाया हूं, मैं आखिरत की इज्जतें भी लाया हूं। मेरे नबी दुनिया की खैरें भी लाए हैं। हालात बदलने हैं तो आमाल बदलो, लोगों से नहीं बदलेंगे हालात, आमाल से हालात बदलेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हालात को बदलने के लिए आमाल की तरगीब दी है, आमाल की तरफ फेरा है। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह, आज मुझे इतना तिजारत में नफा हुआ कि किसी सहाबी को नहीं हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या किया तूने? या रसूलल्लाह, मैं सामान खरीदता रहा, बेचता रहा, थोड़ी देर में मुझे 300 ओकिया चांदी नफे में बची है, जो आज के लाख रुपया बनता है, लाख रुपए से ज्यादा की रकम मुझे बची है। इतनी देर में मुझे इतना मुनाफा हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये क्या नफा है? मैं इससे भी थोड़े वक्त में ज्यादा नफे वाली चीज बताऊं? कहने लगे, या रसूलल्लाह जरूर बताएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फर्ज नमाज के बाद 2 रकत नफल, ये इससे भी थोड़े वक्त में इससे ज्यादा नफी वाली चीज है।
माने नबी ने तो अमल बताए हैं, दुनिया की दौड़ का नहीं फरमाया। बेटी आई है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, कौन है? खातून जन्नत है, जन्नत की औरतों का सरदार बनाया गया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने मेरी बेटी को खुश किया उसने मुझे खुश किया, जिसने मेरी बेटी को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। ये महबूब बेटी किस लिए आ रही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आए थे, गुलाम उस जमाने में आते थे, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेजा, जाओ अल्लाह के नबी से कोई गुलाम तुम भी ले आओ कि मश्क, पानी की मश्क उठाते उठाते तुम्हारे जिस्म पे निशान पड़ गए हैं, और हर वक्त घर के काम काज, घोड़े की खिदमत और बाकी काम काज की वजह से हर वक्त बीमार और थकावट में तकलीफ में रहती हो, तो अल्लाह के नबी से गुलाम लेकर आओ। और ये गई हैं गुलाम लेने, अल्लाह के नबी के पास सहाबा बैठे हुए, शर्म की वजह से कह ना सके। अगले दिन अल्लाह के नबी खुद तशरीफ लाए, मेरी बेटी फातिमा कल तुम आई थी, क्या करने आई थी? या रसूलुल्लाह, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे या रसूलुल्लाह मैंने भेजा था कि आपके पास गुलाम आए थे, जाकर तुम भी एक गुलाम ले आओ। मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा तुझे गुलाम दूं या गुलाम से भी बेहतर चीज बता दूं? गुलाम दो, गुलाम 12,000 दिरहम में कम से कम गुलाम फरोख्त होता था। 12,000 दिरहम आज के जमाने में कोई 6 लाख के करीब रुपया बनता है, 5 लाख 5.5 लाख के करीब 5.5-6 लाख रुपया बनता है। 12,000 दिरहम में एक गुलाम कम से कम फरोख्त होता था। 5.5-6 लाख का वो माल भी था और खिदमत के लिए भी था। लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे मेरी बेटी फातिमा बता क्या दूं, गुलाम दे दूं या गुलाम से बेहतर चीज? कहने लगी या रसूलल्लाह वो भी तो नबी की बेटी थी। कहने लगी या रसूलल्लाह मुझे गुलाम से बेहतर चीज बता दे, वो क्या है? मेरे नबी ने फरमाया रात को जब सोने के लिए लेटने लगो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर या 33 मरतबा अल्लाहु अकबर और 1 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लिया करो, ये गुलाम से भी बेहतर है। अमल बताए हैं कि वो महबूब की जिंदगी ने अमल दिखाए हैं। हमने तो माल की दौड़ लगा ली, कोई हुकूमत की दौड़ में लगा हुआ है, कोई जायदाद हो, नहीं भाइयों कब्र में इनके बारे में नहीं सवाल। मन नबी, तेरा नबी कौन है, किसकी जिंदगी लेकर आया? बाद लोग कह देते हैं मैं एक जगह गया, वो कहने लगा मौलवी साहब असल तो मोहब्बत है, नबी के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। और मैंने कहा नबी से मोहब्बत का तरीका क्या है, कैसे नबी से मोहब्बत की जाए? एक वो है जो आज का मौलवी बताए, एक आम आदमी बताए कि मोहब्बत का ये तरीका, जैसे मीडिया ने, ये बातिल वालों ने हमें सिखाया है कि नबी से मोहब्बत का तरीका 2-4 नारे लगा दो, 2-4 नारे लगा दो। नहीं नहीं भाइयों, अल्लाह के नबी खुद बता रहे हैं कैसे अल्लाह के नबी से मोहब्बत करो। मेरे नबी ने फरमाया मन अहया सुन्नती फकद अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने यकीनन मुझसे मोहब्बत की है। जो नबी की सुन्नत नहीं जिंदा करता वो नबी से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। मेरे नबी की सुनो, अल्लाह के नबी हदीस में फरमा रहे, नबी फरमा रहे मन अहया सुन्नती फकद अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने यकीनन मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना, और जिसने मुझसे इस दर्जे की मोहब्बत की कि मेरी सुन्नत को जिंदा किया, मेरे नबी ने फरमाया वो मेरे साथ होगा, यानी जन्नत में मेरे साथ होगा। तो भाइयों इस मरने से पहले उस महबूब की सुन्नत जिंदगी, दुनिया का कोई काम हो नबी के तरीके के खिलाफ ना किया जाए। खाना पीना है, सोना जागना है, लिबास पोशाक है, और मईशत है, माशरत है, कारोबार है, तिजारत है, खेती बाड़ी है, लेन देन है, गम है या खुशी है। उलमा से पूछे मेरे नबी का क्या तरीका? हमारे नबी की जिंदगी कामिल है। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, वो हस्ती है जो हर ऐब से पाक है। जिंदगी का हर शोबा मुझे और आपको बता कर गए हैं, रहनुमाई मौजूद है। कोई हमारी जिंदगी का ऐसा काम कोई नहीं जिसमें हमारे नबी की रहनुमाई मौजूद ना हो। कामिल अकमल दीन लेकर आए थे, कामिल अकमल जिंदगी लेकर आए थे। कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन
किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मअद बिन अदनान बिन औद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औद बिन बौद बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिह बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबे बिन यहजन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐसी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अकनात बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिस बिन ज़ारे बिन समी बिन मुसी बिन इवज़ बिन ईराम बिन कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन तारिह बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन लामिक बिन मतशालिह बिन उखनून इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन यरद बिन मलहलईल बिन कीनान बिन आनूश बिन शीस और बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये नबी हैं जो जग जहान के सरदार बनकर आए हैं। हमने कलमा उस नबी का पढ़ा है, जिंदगी गैरों की अपनाते हैं। हम कहते हैं हिंदू हमारा दुश्मन है, यहूदी हमारा दुश्मन है, ईसाई हमारा दुश्मन है, लेकिन हमने ही नबी का कलमा पढ़ के उसी की जिंदगी अपनाई। करते वो हैं जो वो बताते हैं, वो नहीं करते जो मदीने वाली सरकार बता कर गए हैं। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, लोगों अगर तुम घरों में नमाज पढ़ने लग जाओगे जैसे कि फला शख्स घर में नमाज पढ़ता है, तो याद रखना नबी की सुन्नत के छोड़ने वाले बन जाओगे। नबी की सुन्नत मस्जिद में नमाज पढ़ने की एक सुन्नत, हम कहते हैं मौलवी साहब सुन्नती ते करो सवाब ना करो ते गुनाह क्या नहीं। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे, अगर तुम घरों में नमाज पढ़ने लग जाओगे जैसे कि फला शख्स घर में नमाज पढ़ता है, तो याद रखना नबी की सुन्नत के छोड़ने वाले बन जाओगे। और अगर तुम नबी की सुन्नत छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। जिस कौम ने नबी की सुन्नत छोड़ी है वो गुमराह हुई है, वो दलदल में फंसी है, वो जिल्लत उनका मुकद्दर बन गई है। और जिसने अल्लाह के नबी की सुन्नत को लाजिम पकड़ा है, सहाबा जान देने के लिए तैयार होते थे एक सुन्नत पर जान देने के लिए, और सुन्नत को हाथ से नहीं जाने देते थे। ये जो अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया मैं इनसे राजी हो गया, ये मुझसे राजी हो गए, ये किस वजह से? कोई उन्होंने नारे नहीं लगाए थे नबी तेरी इज्जत पर जान भी कुर्बान, अमली करके दिखाया था। नबी की सुन्नत को जान हाथ से नहीं जाने दिया, नबी पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। हम नबी की नारे तो लगाते हैं, नबी की इज्जत पर जान भी कुर्बान है, लेकिन नबी की सुन्नत को पूरा करने के लिए तैयारी कोई नहीं है। दोनों जहान के सरदार नबी खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इश्क देखें, सहाबा का इश्क था तो सहाबा को इश्क था। जिससे अल्लाह के नबी नाराज हुए हैं उसे जिंदगी से हटा दिया। एक सहाबी आ रहे जर्द रंग की चादर पहनी हुई, अल्लाह के नबी किसी से नाराज होते तो थोड़ा सा इजहार फरमाते। इजहार ये होता था वो आदमी अगर आता तो सलाम करता, जवाब ना देते, वो समझ जाता अल्लाह के नबी नाराज हैं। अल्लाह के वो इधर से आता तो अल्लाह के नबी मुंह इधर फेर लेते, ये इशारा था कि अल्लाह के नबी नाराज हैं। वो सहाबी आए, उन्होंने सलाम किया, जवाब नहीं मिला, फिर खुद ही सोचने लगे, ये नहीं अल्लाह के नबी से पूछो कि आप क्यों नाराज हैं। खुद ही दिल में ख्याल आया अल्लाह के नबी क्यों नाराज, शायद ये बात हुई, शायद ये बात हुई। एकदम ख्याल आया ये जो चादर पहनी है शायद इस वजह से नाराज हैं। उठ कर गए हैं, घर में आग जल रही थी, चूल्हा, और वो चादर उठाई और वो आग में डाल दी, जल के राख हो गए। फिर बाद में अल्लाह के नबी से आकर नहीं कहा या रसूलल्लाह आप चादर की वजह से, जर्द रंग की वजह से नाराज हो रहे थे, मैंने चादर जला दी। नहीं, बाद में अल्लाह के नबी की खिदमत में जब आए हैं, अल्लाह के नबी की नजर पड़ी, बैठे हैं, अल्लाह के नबी ने बुलाया और फरमाया वो चादर का क्या किया? चादर का कहने लगे या रसूलल्लाह वो तो मैंने जला दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जर्द रंग मर्दों के लिए मुनासिब नहीं है, औरतों को पहना देते, औरतों के पहनने में कोई मुज़ायका नहीं, औरतों के। वो कहने लगे या रसूलल्लाह जिस चीज से आप नाराज हुए मैं उसे जिंदगी में नहीं रखना चाहता। तो ये सहाबा का इश्क था। तो भाइयों आज से हम भी नियत करें, जो जिंदगी नबी की गुलामी के बगैर गुजर गई उस पर हम सब तौबा करें। आज से नियत करें इंशाअल्लाह नबी की जिंदगी अपनाएंगे, करते हैं सारे नियत इंशाअल्लाह। कोई वोट नोट का मुताला नहीं, कोई किसी जमात का मुतालबा नहीं, ये मेरे नबी की सुन्नत का मुतालबा। मैं आपसे झोली फैला कर भीख मांगता हूँ, आ जाओ अल्लाह के नबी की अदाओं को अपनाओ,
فرماؤ نظر آئے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نبی کا غلام ہے۔ اور آخری بات میرے نبی کی دو وصیتیں ہیں۔ الصلاۃ، میرے نبی دنیا سے جاتے جاتے دو وصیتیں کر کے گئے ہیں۔ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی نہیں بخشوا سکتا۔ بے نمازی ہو کر گیا کوئی خیراتیں نہیں بچا سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا بے نمازی پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ جو بے نمازی ہو کر گیا کوئی خیراتیں نہیں بچا سکتے، یہ عذاب بھگتے گا۔ پھر نیک عمل کا ثواب پہنچتا ہے، کوئی انکار نہیں، لیکن جو نبی نے فرمایا اس کے بعد پہنچتا ہے۔ یہ قبر کا معاملہ ہے، نمازی کے لیے کھل جاتی ہے، بے نمازی پر تنگ ہو جاتی ہے۔ قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے بے نمازی کے لیے۔ اس لیے آج سے نیت کرو کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ وما ملکت ایمانکم، لوگوں کا حق ادا کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ پھر یہ خیرات کا انتظام بعد میں، پہلے لوگوں کا حق، پہلے اللہ کا حق۔ نمازیں رہ گئی کوئی جانے والے کے، کوئی روزے رہ گئے ہیں، علماء سے پوچھیں ان کی نمازیں رہ گئی کتنا فدیہ بنتا ہے، روزے نہیں رکھ سکے بیماری کی وجہ سے کتنا فدیہ بنتا ہے، وہ حق ادا کریں۔ پھر لوگوں کا جو حق ہے وہ ادا کریں۔ پھر اس کے بعد کوئی وارث اپنی طرف سے خیرات کرنا چاہے کوئی منع نہیں ہے، لیکن طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے، اگر لوگوں کے حق نہیں ادا کیے۔ میں یہی مظفر گڑھ کے ایک علاقے میں جا رہا ہوا، بہت بڑی خیرات، 100 سے زیادہ دیگے پکائیے، مجمع تو ان کے سامنے کچھ نہیں، بہت بڑا مجمع تھا، اور میں نے وہاں بیان کیا، وہ کہنے لگے جی 100 دیگا پکائیے نے بڑی خیرات کی دی ہے۔ اور بعد میں اسی علاقے کے لوگ کہنے لگے یہی آدمی جس کے پیچھے اتنی بڑی خیرات کی تھی، لوگوں کی زمینیں دباتا تھا، ظلم کرتا تھا، وہ کہنے لگے قبر سے آوازیں آ رہی تھی ہائے مجھے بچاؤ، ہائے مجھے بچاؤ، کسی کا لیا ہے واپس کر دو، واپس کر دو، پہلے وہ ادا کرو اس کے بعد خیرات، کوئی منع نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلام حسین مرحوم کی قبر کو اللہ منور فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بھائی محمد بلال اور باقی لوائقین کو صبر عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔